أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا. یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں، جیسے مرتد کو سزا میں یا قاتل کو قصاص میں یا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے میں یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کرنا، یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے. بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے. قتل کے بارے میں مزید تفصیل سورہ مائدہ کی متعدد آیات کے تحت آئے گی انشاءاللہ تعالی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ترجمہ کنزُ ایمان. اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. ترجمہ کنزُ العرفان. اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. ان تجتنبوا کبائر. اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو. اس سے پہلی آیات میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بیان کی گئی اور اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو. کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، چنانچہ 7، 10، 17، 40 اور 700 تک بیان کی گئی ہے. گناہوں سے متعلق 3 احادیث. ایک، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو. کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو. کچھ حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو. اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو. 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. 3،
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ए गुनाहगार, तो गुनाह के अंजाम बद से क्यों बेखौफ है? हालांकि गुनाह की तलब में रहना गुनाह करने से भी बड़ा गुनाह है। तेरा दाएं बाएं जानिब के फरिश्तों से हया न करना और गुनाह पर कायम रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी तौबा किए बगैर तेरा गुनाह पर कायम रहना इससे भी बड़ा गुनाह है। तेरा गुनाह कर लेने पर खुश होना और कहकहा लगाना उससे भी बड़ा गुनाह है। हालांकि तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला तेरे साथ क्या सलूक फरमाने वाला है। और तेरा गुनाह में नाकामी पर गमगीन होना उससे भी बड़ा गुनाह है। गुनाह करते हुए तेज हवा से दरवाजे का पर्दा उठ जाए तो तू डर जाता है, मगर अल्लाह ताला की उस नजर से नहीं डरता जो वो तुझ पर रखता है। तेरा ये अमल उससे भी बड़ा गुनाह है। बड़े बड़े कबीरा गुनाहों के बारे में मशहूर हदीस ये है, हजरत अमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़े गुनाह ये होंगे। एक, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। दो, मुसलमान को नाहक कत्ल करना। तीन, जंग के दिन राह खुदा में जिहाद से फरार होना। चार, वालिदैन की नाफरमानी करना। पांच, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। छह, जादू सीखना। सात, सूद खाना। आठ, और यतीम का माल खाना। यहाँ मुसलमानों के फायदे के लिए हम 40 गुनाहों की एक फहरिस्त बयान करते हैं, जिनमें अक्सर कबीरा हैं, ताकि कम अज कम ये तो इल्म हो कि ये गुनाह हैं और हमें इनसे बचना है। एक, अल्लाह ताला का कोई शरीक ठहराना। दो, रियाकारी। तीन, कीना। चार, हसद। पांच, तकब्बुर। छह, और खुद पसंदी में मुब्तला होना। सात, तकब्बुर की वजह से मखलूक को हकीर जानना। आठ, बदगुमानी करना। 9, धोखा देना। 10, लालच। 11, हिर्स। 12, तंगदस्ती की वजह से फुकरा का मजाक उड़ाना। 13, तकदीर पर नाराज होना। 14, गुनाह पर खुश होना। 15, गुनाह पर इसरार करना। 16, नेकी करने पर तारीफ का तलबगार होना। 17, हैज वाली औरत से सोबत करना। 18, जानबूझकर नमाज छोड़ देना। 19, सफ को सीधी न करना। 20, नमाज में इमाम से सबकत करना। 21, ज़कात अदा न करना। 22, रमजान का कोई रोजा छोड़ देना। 23, कुदरत के बावजूद हज ना करना। 24, रेशमी लिबास पहनना। 25, मर्द औरत का एक दूसरे से मुशाबहत इख्तियार करना। 26, औरतों का बारीक लिबास पहनना। 27, इतरा कर चलना। 28, मुसीबत के वक्त चेहरा नोचना, थप्पड़ मारना, गिरीबा चाक करना। 29, मकरूज को बिला वजह तंग करना। 30, सूद लेना देना। 31, हराम जराए से रोजी कमाना। 32, जखीरा अंदोजी। 33, शराब बनाना पीना बेचना। 34, नाप तोल में कमी करना। 35, यतीम का माल खाना। 36, गुनाह के काम में माल खर्च करना। 37, मुश्तरका कारोबार में एक शरीक का दूसरे से खयानत करना। 38, गैर के माल पर जुल्मन काबिज हो जाना। 39 उजरत देने में ताखीर करना। 40, और अमानत में खयानत करना।
ये चंद बातनी और जाहिरी गुनाह जिक्र किए गए हैं। इन सब गुनाहों की मालूमात हासिल करना और उनके अहकाम सीखना जरूरी है। अफसोस के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को इन गुनाहों की तारीफें तक याद नहीं कि ये होते क्या हैं। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुमसे दूसरे गुनाह मिटा देंगे। इरशाद फरमाया कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे और उसके साथ दीगर इबादत बजा लाते रहोगे तो हम तुम्हारे दूसरे सगीरा गुनाहों को अपने फजल से माफ फरमा देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। याद रहे कि ये मामला भी अल्लाह ताला की मशीयत और मर्जी पर है। ये बयान सगीरा गुनाहों के मुतालिक है। कबीरा गुनाह तौबा ही से माफ होते हैं। अलबत्ता हज मकबूल पर भी ये बशारत है। इसकी मजीद तहकीक के लिए फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की निहायत तहकीकी किताब बंदों के हुकूक के मुआफ करवाने के तरीके का मुताला फरमाएं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।